Hello everyone, welcome to Chapter Hunt. This is Radhika. In today's video, we will do Class 7 Geography, Chapter 2, Inside Our Earth. Inside our Earth as a topic is very clear. It means interior of the Earth. So in this chapter, we will learn what all is our Earth made up of. So let's get started. How is the Earth a dynamic planet? The Earth is our homeland. It is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. So पहले तो what does the word dynamic means? Dynamic means कि कुछ ना कुछ change हो रहा है every time inside or outside. Like from time to time some or the other change is continuously happening. इस moment भी अभी भी इस समय भी कोई ना कोई change हमारी earth में हो रहा है. So that is why we say that earth is a dynamic planet. And what is our earth like? It is just like an onion. The earth is actually made up of concentric circles with one inside the other. Concentric means एक layer उसके अंदर दूसरी layer फिर उसके अंदर तीसरी layer. Just जैसे आपने कभी घर में प्याज देखा है, when you cut onion, it has many layers. So उसी तरह से our earth is also made up of many layers and it is constantly changing inside as well as outside. So what are the three layers of the earth? Now actually there are many layers. As I am telling you कि earth is just like an onion made up of concentric circles. तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 layers है earth की. It is made up of many layers, but at basic level of your class 7 level, we will classify that our earth has 3 main layers: the crust, the mantle and the core. Now, how much of the earth is crust, mantle and core? The crust forms only 1% of the volume of the earth. 84% consists of the mantle and 15% makes the core. So सबसे जो कम है वो crust है, only 1%, and सबसे बड़ा जो area है that is our mantle and the rest 15% is core. And what is now crust, mantle and core? इसको हम एक एक करके now we will just understand this. What is crust? Now actually जो बाहर की लेयर है, सबसे ऊपर का लेयर, that is called the crust. That means हम अभी जहाँ खड़े हैं, हम अर्थ की crust पर खड़े हैं. This is the outermost बाहर वाला layer. And now this crust is divided into 2 parts. एक ऊपर का हिस्सा that is called the upper crust and एक नीचे का हिस्सा that is called the लोअर क्रस्ट. ना अगर हम आते हैं अपर क्रस्ट पे, अपर क्रस्ट को भी कॉल कॉन्टिनेंटल मासेस, जिसे हम क्या कहते हैं, जमीन. एंड अर्थ के नीचे का हिस्सा दैट इज द लोअर क्रस्ट, उसको कहते हैं ओशन फ्लोर्स. सो दैट मीन्स इन दोनों लेयर्स को मिलाकर बनती है हमारी क्रस्ट, जो कि आउटर लेयर है that is divided into 2. The upper crust that is the continental mass and the lower crust that is the ओशन फ्लोर. कॉन्टिनेंटल मास का मतलब आपको समझ में आ गया, जो कि ज़मीन वाला हिस्सा, एंड ओशन लेयर्स में जो आपका जो ओशंस आ जाते हैं. अब इसी से क्वेश्चन देखो, व्हाट इज क्रस्ट? द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. देन व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ क्रस्ट? इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स. ये भी आपने देखा, देखो इसमें it covers only 1% of the volume of earth. So that means it is the thinnest, सबसे पतली of all the 3 layers. Now it is about 35 kilometers on the continental masses and only 5 kilometers on the ocean floors. So that is what I told you, that crust is divided into 2 parts, the continental mass and the oceanic floors. अब continental mass और ocean floor में आपको इसका depth. Now continental mass का depth is 35 kilometer and ocean floors depth is 5 kilometer. Now what does this mean actually? अगर आप सोचो, imagine अगर हम एक गड्ढा खोदते हैं, शुरू करते हैं, तो जब हम 35 किलोमीटर्स का गड्ढा खोद देते हैं तब हम उसको कॉन्टिनेंटल मास को पार कर जाते हैं. एंड इफ वी डिग 5 किलोमीटर्स मोर, दैट इज टोटल 40 किलोमीटर्स अगर आप डिग करते हैं, नीचे एक इतना गहरा गड्ढा खोदते हैं हम, तो हम तब जाके हम क्रस्ट को पार करते हैं और हमारी दूसरी लेयर स्टार्ट होती है. सो नाउ यू हैव एन आइडिया व्हाट क्रस्ट इज. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्रस्ट किससे बनता है? नेम द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। अब कॉन्टिनेंटल मास के बारे में, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज दस कॉल्ड सियाल। अब देखो, जैसे क्रस्ट का जो अपर क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, मेनी मिनरल्स, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट नेम्स ऑफ ऑल एज पर योर क्लास 7 लेवल। जो अब सबसे ज़्यादा हमें मिलता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसी का नेम वी विल राइट, एंड दैट टू आर सिलिका एंड एल्यूमिना। सिलिका कहाँ पे मिलता है? जैसे रेत और मिट्टी में सिलिका बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, और एल्यूमिना जैसे आपने देखा जिससे कि एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स मिलते हैं। सो ये सियाल कैसे बना? Si ऑफ सिलिका एंड Al ऑफ एल्यूमिना। तो इससे बन के हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल मास को सियाल। Now name the constituents of the oceanic crust. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is thus called seema. अब इसमें जो oceanic crust में इस सेम, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? silica and magnesium. So taking Si from silica and Ma from magnesium, we call the ocean crust as seema. Now what is mantle? अब crust के बाद क्या आती है? Mantle. Just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 2900 kilometers below the crust. Now बाहर की जो लेयर थी वो crust थी, उसके बाद beneath का मतलब just नीचे, एकदम crust की नीचे जो लेयर आती है उसको हम लोग बोलते हैं mantle, and it is approximately 2900 किलोमीटर्स। नाउ आपने अभी व्हाट डिड वी इमेजिन कि अगर हम 40 किलोमीटर्स डिग करेंगे, कुछ गड्ढा खोदेंगे, देन हम क्रस्ट को पार करेंगे, एंड नाउ यू हैव टू डिग अगेन 2900 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, तो जाके आप मैंटल को क्रॉस करोगे। सो दैट मीन्स इससे यू कैन जस्ट इमेजिन कि मैंटल कितनी बिग लेयर है। नाउ व्हाट इज कोर? The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। कोर एक इंग्लिश का वर्ड अगर आप समझो, वर्ड कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब होता है बीच में या किसी भी चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो जो हमारे सबसे अंदर की लेयर है, दैट इज कॉल्ड द कोर। सो आवर अर्थ, आप इमेजिन करो, इट इज़ जस्ट लाइक एक बड़ी बॉल, उसके अंदर एक छोटी बॉल, फिर उसके अंदर एक और बॉल, और इसका रेडियस कितना है? इट इज़ 3500 किलोमीटर्स। Now, what are the main constituents of the core of the earth? Now, core is mainly made up of nickel and iron, and it is called Ni, nickel, Fe, ferrous, that is iron. The central core has very high temperature and pressure. अब किस चीज़ से ये बना हुआ है? निकल एंड आयरन। आयरन क्या हुआ? लोहा। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? फेरस। तो Ni यहाँ से लेके और Fe वैसे लेके नाइफे, तो वी कॉल इट एज नाइफे। कोर का कैसे बन जाता है? नाइफे। एंड अर्थ में जो है बहुत, इट हैज़ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। Now what is the radius of the earth? Radius of the earth is 6371 kilometer. इसको आप याद कर लो। Now next question comes is, what is the earth's crust made up of? अर्थ का क्रस्ट किस चीज़ से बना है? अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किया, यू मस्ट हैव गॉट अ ब्रीफ आइडिया कि क्रस्ट पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। सो लाइफ कुड इवॉल्व ऑल्सो बिकॉज नेचर हैज़ मेड फेवरेबल कंडीशंस फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। लाइफ एग्जिस्ट करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? रॉक्स। कैसे? हाउ कैन आई से दैट रॉक्स इज द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम विच लाइफ स्टार्ट्स? जैसे अगर पत्थर है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं, कैसे टूट जाते हैं? बर्फ़ से, पानी से, हवा की वजह से। लेकिन मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स ये प्रोसेस चलता रहता है। जब ये टूट जाते हैं तो फिर उससे क्या बनता है? इट बिकम्स सॉइल। अब सॉइल से क्या हुआ? सॉइल किसके लिए चाहिए? प्लांट्स के लिए। एंड प्लांट्स पे कौन फीड करता है? हम ह्यूमंस भी और एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं। सो आपने क्या देखा? रॉक्स से बना सॉइल, मिट्टी से प्लांट्स से एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सो दैट मीन्स बेसिक जो स्टार्ट होता है हमारा, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर लाइफ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रॉक्स। तो इसीलिए हमने बोला
What is the earth's crust made up of? So that is the earth's crust is made up of different types of, बहुत ही different तरह के rock से हमारी earth crust बनी हुई है. Now what is a rock? A rock is a natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust. Rocks can be of different colors, size and texture. अब rock, like सबसे पहले आप समझो कि what are the parameters? What are the parameters कि मैं बोलूँ कि yes it is a rock. तो इसमें पहली चीज़ जो होनी चाहिए, it should be a natural mass. सेकेंड क्या होना चाहिए, मिनरल मैटर, मतलब वो मिनरल्स का बना होना चाहिए. एंड थर्ड द बेसिक थिंग इज found on earth's crust. So there are basically 3 parameters जिनके बेसिस हम कहते हैं कि yes it is a rock. First natural mass, second mineral matter and third found on the earth's crust. Then only it can be called a rock. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. मैं आपके हाथ पे एक पेंसिल रखती हूँ, एक फ्लावर और एक रॉक. तो टेक्निकली टर्म्स में तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कि पेंसिल, फ्लावर और रॉक में क्या डिफरेंस है. यू कैन ईजिली मेक आउट कि इसमें से रॉक कौन सा है. बट अगर आपको वैसे समझना हो इन टर्म्स के बेसिस पे तो कैसे समझोगे. पेंसिल इज नॉट नेचुरल. अगर वो नेचुरल नहीं है तो वो रॉक नहीं है. ठीक है. अगर अब आप फ्लावर इज नेचुरल, फ्लावर इज ऑल्सो नेचुरल, रॉक इज ऑल्सो नेचुरल. फिर हम फ्लावर को क्यों नहीं बोलते रॉक? वाई? बिकॉज थर्ड पैरामीटर एक और जो है रॉक्स का कि इट शुड बी मेड अप ऑफ मिनरल्स. सो ऐसे करके वी जस्ट चेक कि तीनों पैरामीटर्स जब होते हैं तो तब हम उसको रॉक बोलते हैं. और रॉक बहुत डिफरेंट कलर्स और आपने देखा है छोटे रॉक्स होते हैं, बड़े, नीला पत्थर, काला पत्थर. सो इट इज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस. नाउ नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ये कलर्स या इसका साइज, ये है ऑन द बेसिस ऑफ ये रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये रॉक्स कैसे बनते हैं. इन बेसिस पे हमने इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है. इग्नियस रॉक्स और द प्राइमरी रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब इसको धीरे धीरे से हम पूरा इसका समझेंगे आगे डिस्क्रिप्शन में. नाउ व्हाट इज लावा? लावा इज अ फ्यूरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. तो जब वो मैग्मा होता है, मॉल्टन मैग्मा, पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है अर्थ क्रस्ट के, उसको हम लावा बोलते हैं. एंड व्हाट इज मैग्मा? मैग्मा इज द वेरी हॉट लिक्विड रॉक फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस. तो जो मॉल्टन पिघला हुआ जो रॉक होता है जो हमारी अर्थ क्रस्ट में फाउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा. नाउ व्हाट आर इग्नियस रॉक्स? एंड अब देखो इग्नियस रॉक्स को समझते हैं. इग्नियस रॉक्स का जो पहला तो जैसे आई जस्ट एक्सप्लेन यू एंड देन आई रीड दीज ऑल 3 क्वेश्चंस टुगेदर. नाउ इग्नियस रॉक का जो पहला है कि आप सोचो इट इज एन इंग्लिश वर्ड बट ये डिराइव कहाँ से हुआ है? फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस. इग्निस का मतलब होता है फायर. कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आग होती है. जैसे अगर आपने घर पे देखा है, अगर प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में जब सीटी लगी होती है और अगर जब ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो सीटी ऊपर उठती है और धुआं भी निकलता है. कुकर के अंदर जो भी कोई चीज़ होती है वो भी साथ में निकलती है उसके बाहर. इट इज़ द सेम वे विद आवर अर्थ. जब हमारी अर्थ के पूरे सरफेस पे अलग अलग जगह पर वॉल्केनोज होते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा लावा जो है टाइम पे, लाइक एज पर द टाइम दिस वॉल्केनो कम्स आउट, ये वॉल्केनो बाहर आता है और जब बाहर आने पर ये धीरे धीरे ठंडा होता है, सूखता है. इस लावा के सूखने पर जो रॉक बनते हैं उन रॉक को हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. यू अंडरस्टैंड कि जब ये ठंडा हो जाता है, ये जो लावा निकलता है, ये जब ठंडा हो जाता है, सूखता है, तो सूखने के ऊपर ये जो बनते हैं रॉक्स, इनको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक्स. तो तभी इसका नाम ऐसे आया रिलेटेड टू फायर, जैसे ये लावा से बना है और इसलिए सबसे पहले क्योंकि ये रॉक बने हैं तो इसलिए इनका नाम बोलते हैं हम लोग इसको प्राइमरी रॉक्स. Now see, when the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rock. They are also called primary rocks. Example, basalt. Ignis means fire, क्योंकि this is derived from the Latin word ignis, which means fire. Now there are 2 types of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rocks. Now अगर आप सोचो कि अगर ये एक ही तरह से ठंडे होने पे बन रहा है देन वेयर इज द डिफरेंस? इसमें डिफरेंस क्या है कि इसको हमने इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स में कैसे डिवाइड कर दिया. इसमें द बेसिक डिफरेंस लाइज
इन द टाइम, कि इन दोनों के जो फ़र्क है वो है टाइम का. नाउ कैसे, सी हाउ द नेचर हैज़ प्लान्ड थिंग्स. कभी जो होता है कि लावा जो होता है वो ठंडा होता है और सूखता भी वही है. देन जो कि अंदर हमारी अर्थ से लावा जो बाहर आता है थ्रू अ वोल्केनो, वन पार्ट इट रिमेन्स इनसाइड एंड वन पार्ट कम्स आउटसाइड. दैट पार्ट ऑफ द वोल्केनो दैट कम्स आउट, जो बाहर निकल आ जाता है लावा, वो ठंडा जल्दी हो जाता है और जल्दी सूख जाता है. वेराज जो अंदर रह जाता है वो लावा टाइम लेता है टू ड्राई. नाउ दिस इज द मेन डिफरेंस. एक्सट्रूसिव जो हो गया दैट मीन्स जो एक्सटीरियर में जो लावा आपका बाहर आया. इंट्रूसिव से समझो जैसे इनसाइड, जो अंदर ही रह गया, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव. इसी तरह से जो लावा बाहर आता है और वो जल्दी ठंडा हो जाता है उसको बोलते हैं हम एक्सट्रूसिव, और उससे जो रॉक्स बनेंगे उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक्स. एंड दैट लावा विच रिमेन्स इनसाइड, इट टेक्स टाइम टू ड्राई एंड देन इट टेक्स टाइम टू चेंज इनटू रॉक्स. उस रॉक्स को हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स. Now name two types of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rocks. What are extrusive igneous rocks? Now see, when the molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in this way on the crust are extrusive igneous rocks. They have very fine grained structure. क्योंकि ये बाहर होता है, जल्दी से हो जाता है, जल्दी से सूख जाता है, तो इसलिए से जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे और बहुत फाइन होते हैं. इसका एग्जांपल बसाल्ट, जैसे कि जो डेक्कन प्लेटो है हमारा, इट इज़ मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स. डेक्कन प्लेटो कौन सा रीजन होता है हमारा, जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच की जगह होती है. सो दैट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. Now coming to what are intrusive igneous rocks, sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. ये मैंने आपको बोला कि जो अंदर रह जाता है और वो धीरे धीरे takes time to solidify, hard होना, सूखने में. Solid rocks formed in this way are intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. इनके grains बड़े होते हैं क्योंकि they take time to cool down. Example, granite. ग्राइंडिंग स्टोन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. ग्राइंडिंग स्टोन्स क्या होते हैं, जैसे वो जो घर में होते हैं, जैसे हमारी मसाला पीसने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. दैट इज अ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर सेडिमेंट्स. व्हेन रॉक्स roll down, crack and hit each other and are broken down into small pieces, these smaller particles are called sediments. This process is called weathering. तो sediments क्या हुआ, rocks में जब क्रैक आ जाता है, इन रॉक्स में जैसे अगर पानी पड़ता है, कुछ हवा से, बर्फ़ से, इनमें कोई क्रैक पड़ जाता है, तो ये जो है छोटे छोटे रॉक जो हैं और छोटे छोटे स्मॉल रॉक्स में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे स्टोन्स में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में ये ब्रेक होता है, और इन पीसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स. और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जिससे कि अ बिग रॉक इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग. How are sedimentary rocks formed? अब sedimentary rocks कैसे बनते हैं, पहले आप इस आंसर को, जैसे I'll give you a brief explanation for this and then I'll read these two questions. Now जैसे अगर आप सोचो igneous rocks हमारे बन गए, अब इन millions या lakhs of years बर्फ़, हवा, पानी, किसी भी वजह से ये पत्थर टूटने शुरू हो जाते हैं. कैसे होता है, जैसे अगर आप किसी पत्थर पे पानी पड़ता ही रहता है तो उसमें एक क्रैक आ जाता है, एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि ये जो रॉक है ये टूटना शुरू हो जाता है. इस तरह जो पत्थर के जो टुकड़े हैं ये टूटते ही रहते हैं किसी भी तरह से, बिकॉज ऑफ एयर या वाटर, किसी भी तरह से ये टूटते रहते हैं. अब बिकॉज ऑफ दिस या हवा या पानी ही इनको उड़ाकर दूर कहीं ले जाती है. अब इन मैनी एंड मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऐसे छोटे छोटे टुकड़े लेयर पर लेयर बनाते रहते हैं. तो क्या होता है, एक लेयर पे दूसरी लेयर, उस पे फिर एक और लेयर, ये परत पे परत बनती रहती है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये एक रॉक में बन जाता है. तो ऐसे जो रॉक्स बनते हैं जो कि
सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं। कैसे आते हैं? जो कि हवा या पानी उनको उड़ा के दूर ले जाती है और फिर ये लेयर्स इकट्ठी होती रहती हैं और इस तरह से जो रॉक्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो बन गए सेडिमेंट से। सेडिमेंट्स अभी हमने पढ़ा द स्मॉलर पीसेस जो कि रॉक से जो ब्रेक होकर बनते हैं, उनसे जो अब रॉक बनेगा उसको बोलेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक्स। अब कभी कभी क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज, जब ये लेयर बन रही है, ये रॉक्स की लेयर बन रही है, इट माइट हैपन दैट एनी प्लांट्स, फ्यू लीव्स या कोई एनिमल वहाँ पे मर जाए या कोई बैक्टीरिया या फंगाई कुछ वहाँ पे ग्रो हो जाए। ये भी जो चीज़ें होती है, दीज थिंग्स ऑल्सो गेट मिक्सड अप इन दीज लेयर्स और इसीलिए हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में ये जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स मतलब ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। सो अब इस आंसर को आप पढ़ो। हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड? रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस नोन एज sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks known as sedimentary rocks. तो ठीक है, ये जो rocks थे ये जब compress हो गए और hard हो गई, इनकी layer of rocks जब बन गई, तो इस तरह से जो rocks बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं sedimentary rocks. अब तो अगर आया व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इसमें आप ऊपर वाला भी आंसर और ये वाला आंसर कंबाइन करोगे। फर्स्ट तो आप बताओगे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे हैं, फिर उसमें यू कैन राइट एग्जाम्पल ऑल्सो। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड देन दीज रॉक्स मे ऑल्सो कंटेन fossils of plants, animals and other microorganisms. As I told you कि अगर जब ये रॉक्स परत इन पे लेयर बन रही होती है तो इसी के अंदर फॉसिल्स भी आपको मिल जाते हैं कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, समटाइम कोई प्लांट्स, कोई लीव्स, सम फंगाई, ये भी इसके अंदर मिलते हैं। तो ये दिस इज द बेसिक फीचर ऑल्सो ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कि इसमें आपको फॉसिल्स भी मिलते हैं एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेडिमेंटम। सो दिस बिकम्स योर फुल, अगर ज़्यादा मार्क्स का आंसर आएगा कि व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स, यू एक्सप्लेन व्हाट आर रॉक्स, गिव द एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन हाउ आर दे फॉर्म्ड। Now, what are metamorphic rocks? Metamorphic मतलब metamorphosis का मतलब क्या होता है? It means change of form. Actually ये क्या है? ये rocks कभी भी एक तरह से नहीं होते, कभी भी एक जैसे नहीं होते. Metamorphic actually it is a process. Now see what nature does. लावा से बना इग्नियस रॉक्स, इग्नियस से फिर सेडिमेंट्री। अब ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ये फिर से बदल जाते हैं, ये फिर से कुछ चेंज, इग्नियस भी रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, दीज बोथ चेंज बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर और हीट की वजह से ये रॉक्स चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। और फिर क्या होता है, एंड द एंड फिर सब ये जाके फिर से लावा में मिल जाते हैं और ऐसे ही नेचर वर्क करता है। ये साइकिल इसी तरह हमारे यूनिवर्स में चलती रहती है। What are metamorphic rocks? When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. For example, clay changes into slate. So that means clay change हुआ slate में, तो metamorphic rock कौन सा हुआ? Slate. And then limestone into marble. So that means what is the metamorphic rock? Marble. So that means slate और जो marble है ये है एक पत्थर का changed form. So these are metamorphic rocks. Now what are fossils? The remains of the dead plants and animals trapped in the layer of rocks are called fossils. I told you वो जो dead and decayed plants and animals इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Fossils. So that's all for today's session. I'll continue this chapter in my next video. Please like, share and comment if you like this session. Subscribe to Chapter Hunt and stay tuned for much more. Take care. I'll see you soon in my next session. Bye-bye.